Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are learning electrophilic substitution reactions for benzene. Benzene prefers to give always electrophilic substitution reactions just because of the presence of delocalized electron which carry negative charge. They are perpendicular to the surface of benzene. They attract electrophile and repel nucleophile. Benzene ring attacks on electrophile due to orientation. Its positive charge rotates throughout the benzene ring and finally it removes H positive, which is removal of electrophile. That's how substitution of an electrophile takes place. And we have discussed yet three previous examples for electrophilic substitution reactions. One was chlorination, other nitration, and sulfonation. In our course, we have 5 particular examples for electrophilic substitution reactions. Fourth one is Friedel-Crafts alkylation. And the fifth one is Friedel-Crafts acylation. Today we will discuss first Friedel-Crafts alkylation, in which alkyl radical is being substituted to the benzene ring. For this purpose, on the screen I have mentioned the format or the structure or the layout for the mechanism of electrophilic substitution reactions. Every electrophilic substitution reaction mechanism consists on 3 steps. The first most step is formation of electrophile. Second is attack on electrophile. Third one is recovery. How electrophile is being formed, I'll teach you first. Keep looking on your whiteboard. Students, यहाँ पर मैं लूंगा सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड. Secondary propyl chloride may combine with FeCl3. FeCl3 takes 1 chlorine from secondary propyl chloride and it makes FeCl4 minus along with this propyl electrophile. Must remember, removal of chlorine from secondary propyl chloride takes place in this way that both electrons would be taken by chlorine as a chloride. This chloride will join FeCl3 and makes FeCl4. स्टूडेंट्स बताइएगा क्या ये पहला स्टेप क्लियर है आपको? क्या ये पहला स्टेप क्लियर है सबको? सर ये जो CH3 वगैरह आपने लिखा है, ये आपने फॉर्मूले में क्यों नहीं लिखा? CH3 फॉर्मूले में मतलब कंबाइन करके इस जगह पे कह रही हो? जी, ये तो लिखा हुआ है ना, CH3 है, फिर CH है, फिर CH3 है. यहाँ भी वही है, CH3 है, CH है, कंबाइन CH3 करके है. नहीं, कंबाइन इसलिए नहीं लिखा. I have to describe that this carbon is secondary at which I'm pointing out. This one. Okay? यस सर. ये सेकेंडरी होना जरूरी है. तो हमारी बुक में भी सेकेंडरी लिया गया है.
तो याद रखिए यहाँ सेकेंडरी कार्बन होगा तो यहाँ रिमूवल हो जाएगा इजीली और आपका इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। नाउ आई विल यूज दिस इलेक्ट्रोफाइल फॉर अटैक ऑफ बेंजीन रिंग। हाउ डज इट गेट अटैक्ड, देखिए। देखिए ये रहा आपका बेसिक बेंजीन रिंग, ये रही। यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, प्लस ये मैंने लिखा CH और इसके साथ है CH3 और CH3। जानबूझ के मैं इसको टेढ़ा लिख रहा हूँ ताकि इस कार्बन पर मौजूद जो पॉजिटिव साइन है वो अटैकेबल व्यू हो जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो अटैक है याद रखें वो नेगेटिव लोग ही करते हैं हमला। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो ये अटैक करेगा इस पे, कार्बन पे, और फिर बेंजीन के 3 स्टेप्स आपको नजर आ सकते हैं। आज जरा मैं साफ सुथरा काम बच्चे शायद ना कर पाऊँ बिकॉज बता चुका मैं आपको ये लैपटॉप मेरा नया है और मुझे राइटिंग में थोड़ा इश्यू हो रहा है। आप भी इसी तरह कर लिया करें कि पहले आप 3 वो बना लें पहले, और इन पे यहाँ पे भी आप 2 वो ले लें, बॉन्ड्स ले लें, ताकि मैकेनिज्म इजीली आपसे हो सके। ऊपर वाले में हमेशा आप H बनाएं, नीचे वाले पे हमेशा आप वो ग्रुप बनाएं जो कि इलेक्ट्रोफाइल का है, वो है CH, CH3, CH3, CH, CH3, CH3, CH, CH3 और CH3। फिर आपको बच्चों चाहिए किसके बॉन्ड्स बना लें। इस जगह पे होगा प्लस चार्ज, फिर चार्ज आ जाता है यहाँ पे, फिर चार्ज आ जाता है यहाँ पे, बॉन्ड आ जाता है यहाँ और ये अपनी जगह पर होता है। देन बॉन्ड इधर आता है और इधर होता है अपनी जगह पे। अब देखिए कि इसमें मैं कलर के जरिए से क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। देखिएगा चार्ज हमेशा आगे शिफ्ट होता है, बॉन्ड पीछे शिफ्ट होता है। चार्ज आगे शिफ्ट होता है, बॉन्ड पीछे शिफ्ट होता है। और फाइनली इन सब स्ट्रक्चर्स के दरमियान आप डबल एरो बनाते हैं। पर्पस ऑफ डबल एरो इज कि हम इसको ये शो कर सके कि दीज 3 आर आइडेंटिकल। फाइनली आप एक काम करेंगे कि लास्ट स्ट्रक्चर को दोबारा यहाँ नीचे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे चार्ज दीजिए, इधर बॉन्ड होगा, इधर बॉन्ड होगा, यहाँ H होगा, यहाँ आपका इलेक्ट्रोफिल होगा CH, CH3, CH3। आफ्टर रिमूवल यू विल सी कि along with बेंजीन रिंग यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा। इस जगह पे CH होगा और साथ में होगा CH3 और साथ में होगा CH3 और प्रोड्यूस होगा H पॉजिटिव। ये तीनों जो स्ट्रक्चर बनते हैं इसको ब्रैकेट में लिखना होता है। इसके नीचे आप लिखते हैं कि यह है तुम्हारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ रिमूवर में आपको फिर डिफरेंट कलर से दिखाऊंगा ताकि याद रहे, वाजे हो जाए कि किस तरह से ये काम होता है। जनाब ये रहा आपका बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, दिस हाइड्रोजन विल लीव और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे और आपका ये वाला
बॉन्ड बनता है, ये वाला। तो ये इस तरह से मैकेनिज्म बच्चों मुकम्मल होगा। अब आप मुझे बताइए कि रिकवरी के लिए मैंने आपसे क्या हिंट डिस्कस की हुई है, रिकवरी में क्या होता है? आपने कहा था फर्स्ट का पॉजिटिव और सेकंड का नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप का नेगेटिव, दूसरे स्टेप का पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा जी, ये रहा आपका FeCl4 नेगेटिव और ज्वाइन करेगा H पॉजिटिव को, बनाएगा HCl और बनाएगा FeCl3। जी बच्चों, ओके हो गया ये? यस सर। सर सेकंड स्टेप में नाम क्या आएगा? बेटे इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसो जी, बाकी स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म करें ओके ये? कोई सुन रहा है मुझे, कोई जवाब देगा? यस सर। अब नंबर 5 है जी, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बच्चों अब मैं ये रिएक्शन एसाइलेशन वाला डिटेल में नहीं कराऊंगा, इसका मैं फर्स्ट स्टेप आपको जस्ट एक्सप्लेन करूंगा, बाकी 3 स्टेप्स आप खुद करेंगे, कर लेंगे? जी सर। नंबर 5 है हमारा फ्राइडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन। और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में पहला स्टेप वही है जी, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल। दूसरा स्टेप होगा अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिल। तीसरा स्टेप होगा रिकवरी का। सबसे पहला स्टेप आपको समझना होगा, बाकी सेम है कि किस तरह से ये हमारे पास वर्क होगा। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि CH3 कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन से और यहाँ लगा हुआ है Cl। ये जो CH3CO है इसका नाम है एसाइल, साथ में क्लोरीन लगा हुआ है तो इसलिए इसका नाम बन जाएगा एसाइल क्लोराइड। बात समझ में आ गई है बच्चों? यस सर। एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे FeCl3 से। इस बार फिर Fe क्लोरीन को ले लेगा नेगेटिव चार्ज के साथ और बाकी जो बच जाएगा वो होगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और इस कार्बन पर जो चार्ज है वो होगा प्लस। ये है आपका इलेक्ट्रोफिल और ये है आपका न्यूक्लियोफिल। ये जो क्लोरीन है ये इस तरह से जाएगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा और ये क्लोरीन ज्वाइन कर लेगा FeCl3 को। दैट्स हाउ इट विल मेक FeCl4 एंड दिस कार्बन विल कैरी माइनस चार्ज। तो बच्चों अब आप ये जो सेकंड स्टेप है सिर्फ इस जगह पर ये वाला ग्रुप लगाएंगे CH3CO और इसको यू टेढ़ा लिखिएगा कि यू कार्बन लिख दे या CH3 लिख दे, नीचे डबल बॉन्ड O लिख दे
और इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव करते हैं। यानी ये वाली शेप आपने इस जगह पर यूज करनी है और ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। फाइनल आपके पास जो बेंजीन प्रोडक्ट में आएगी वो ये होगी, इस जगह पे होगा C डबल बॉन्ड विद O और यहाँ पर होगा CH3। इसका नाम है एसाइल बेंजीन या इसका नाम होता है एसीटो फिनॉल। रिकवरी का स्टेप यही सेम आएगा क्योंकि पहले स्टेप में FeCl4 है, पहले भी था अब भी है। दूसरे स्टेप पे H+ है, पहले भी था और अब भी है। तो तीसरा और दूसरा स्टेप बच्चों सेम है, सिर्फ पहले स्टेप का फर्क था। अब ये आप मुकम्मल खुद कर लेंगे, बताइए ओके कर पाएंगे? यस सर। सर यहाँ पर हम FeCl3 क्यों लेते हैं? FeCl3 इसलिए लेते हैं कि ये बेटा ल्यूइस बेस होता है। ल्यूइस बेस ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है which has ability to accept lone pair of electron। दरअसल यहाँ जो क्लोरीन में आना है तो वो लॉन पेयर के साथ आएगा। अगर ये एक्सेप्टर नहीं होगा तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये प्रोफाइल नहीं बनेगा। लॉजिक समझ में आई पूरी? यस सर। बेटे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। यस सर। ओके बच्चों? यस सर। अच्छा अब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। बेटे स्क्रीन पे जो आपके सामने मैंने वर्क किया है, मैंने इन तमाम रिएक्शंस का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है। अगर 1 नंबर के लिए आएगा तो आपको मैकेनिज्म नहीं देना, आपको सिर्फ रिएक्शन देना जो मैं अब करवाऊंगा। ये मैकेनिज्म उस वक्त देना है जब आपको 3 या 3 से ज्यादा नंबर के लिए पूछा गया है। Did you get my point? यस सर। Now I will write their reactions individually। पहले ये रिएक्शन आएंगे फिर ये मैकेनिज्म आएंगे, तो मैंने आपको 5 करवाए हैं। देखिए वो रिएक्शंस क्या है। नंबर 1 है जी क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का रिएक्शन ये होगा कि आप बेंजीन लिखेंगे सबसे पहले। बेंजीन का हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ होता है FeCl3 एंड यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। ये रही वो बेंजीन जिसके साथ एक क्लोरीन लग जाएगा और साथ में प्रोड्यूस होगा HCl। ये रिएक्शन है। 1 नंबर आएगा तो सिर्फ ये लिखना बस। अगर 2, 3, 4 नंबर बढ़ जाएंगे, 3 या 3 से ज्यादा नंबर होंगे तो फिर आपको इसके साथ मैकेनिज्म भी देना होगा। नंबर 2 नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में बच्चों हम रिएक्शन करवाते हैं HNO3 से। इन द प्रेजेंस ऑफ होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और you will get नाइट्रोबेंजीन और साथ में गालिबन H2O बनता है। इसी तरह से तीसरा रिएक्शन होगा आपका सल्फोनेशन, जिसमें बेंजीन का रिएक्शन होगा SO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4
और आपको हासिल होगी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसमें यहाँ पर लगा होगा HSO3 और साथ में वो रिकवर हो जाता है। खैर इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। रिएक्शन के मैकेनिज्म भी करवा दें। आलिया इनका मैकेनिज्म तो मैं करवा चुका हूँ बेटे, लास्ट क्लास में शायद आप नहीं थी। क्लोरिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन के तीनों के मैकेनिज्म मैं करवा चुका हूँ, और जो नंबर 4 और 5 है उसका मैकेनिज्म आज मैंने करवाया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मरियम से राब्ता करके उससे आप वीडियोस ले लें, वो देख लें, क्योंकि आज की क्लास और पिछली क्लास कनेक्टेड है, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ये है फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें हमने क्या किया कि बेंजीन का रिएक्शन करवाया सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड से, जिसके नतीजे में वजूद में आया सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन। यहाँ लगा दो CH, V बना दो, ऊपर लिख दो CH3 और CH3, साथ में प्रोड्यूस होता है HCl। और जो पांचवा रिएक्शन है वो है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके लिए क्या होगा कि आप एसिटोफिनोन को प्रिपेयर करते हैं, बट रिएक्ट करवाएंगे एसाइल क्लोराइड के साथ। एसाइल क्लोराइड से जब रिएक्ट करवाओगे तो बेंजीन के साथ लगने वाला जो ग्रुप है यू शो कर दो, या कार्बन लगाओ, इधर डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन लगाओ, या सिंगल बॉन्ड विद CH3 लगाओ, और साथ में बन जाएगा HCl। ये बच्चों ओके? यस सर। बेटे मैकेनिज्म तीनों स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप का वो जो मैंने काम करवाया है वो कंप्लीट मैकेनिज्म है। ये सिर्फ रिएक्शन है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। तो आप दोबारा से रिपीट कीजिएगा इस टॉपिक को अपनी कॉपी में। सबसे पहले ये रिएक्शन लिखिएगा, उसके नीचे वो मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स कॉपी करेंगे, तो फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जनाब? यस सर।